द लॉर्ड चर्च। बहुत ही आनंद का बात है, हम हमारे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए एक साथ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, सुरक्षित रखा है। वी हैव ऑलरेडी कम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। हालेलुया। राइट, सो आइज़ाया में लिखा है, आइज़ाया 25 वर्स 1 में लिखा है, लॉर्ड यू आर माई गॉड, I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम उसकी आराधना करेंगे। आइए हम अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं। You know, I'm sure there is nobody among us over here present who have nothing to thank God for. You know, we cannot keep our mouth shut. We cannot keep our mouth shut. If you really can't see anything that the Lord has done for you, ask the Holy Spirit to show you. Because God is faithful and He has done great things. I want you to start counting your blessings, seeing the faithfulness of God in your lives. Start thanking God. Start exalting Him in your life and in this place. Hallelujah. आइए आइए कलीसिया, हम चुप नहीं रहेंगे। आइए अपने अपने मुंह को हम खोलेंगे। Let's open our mouth and start praising Him. Let's open our mouth and start giving Him thanks, for He deserves every praise, every glory, every honor that rises from our mouth. Oh, we exalt you, God. We exalt you, Lord. We thank you for who you are to us, God. Yes, Lord, you are our faithful God. You are an ever-present help. You are our friend, O God. And Lord, you are everything that we need. We exalt you, God. We lift your name on high, O God. Yes, Lord, for you have done great and mighty things in our life. Lord, we can't even number them. We can't even count, O Lord. Such great is your faithfulness, O God. Oh, Yeshu, तेरी आराधना हो, come and take your rightful place, good Jesus. We welcome you in this place. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Pavitra Atma, मुझे ले जा यीशु के चरणों
जयकार करते हैं हम प्रभु, क्योंकि तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु। होने दे हमारे हर गीत, हर शब्द प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। हमारा जो जीवन हो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। तू बढ़ता चला जाए प्रभु और हम घटते चले जाए। Be exalted, O God. Be exalted in and through us, O Lord Jesus. We lift you up.
Yes, Lord. May my life be a worship unto you, God. प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा जय जयकार हो। वो प्रभु मेरे बोलों के द्वारा प्रभु मेरे होठों के द्वारा हर एक शब्द प्रभु जो मेरे मुंह से निकलता है प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी जय जयकार होने पाए परमेश्वर पिता। Oh yes, oh Lord Jesus. Lord, we need you, God, because we fail, oh God. It is so difficult, oh Lord, to be mindful to worship you with our every being, oh God. लेकिन प्रभु आज हम ये गीत को गाते हैं कि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तू ही तू हो प्रभु। प्रभु मेरे होठों पे, मेरे गीतों पे प्रभु, मेरी नजर में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू और तू ही हो प्रभु। तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए परमेश्वर और मैं घटती चली जाऊं, हम घटते चले जाए परमेश्वर पिता। होने दे मेरा जीवन तेरी जय जयकार करे प्रभु, क्योंकि तू हर आराधना हर स्तुति के योग्य है परमेश्वर। Oh, we worship you, God. We worship you, God. You are worthy of every praise. Be exalted in our lives. Be magnified in and through us. We raise your name, O Lord. Yes, Lord. We want to worship you all the days of our life. Okay, good morning once again. Good morning, praise the Lord. So good to be in the house of the Lord. परमेश्वर का भवन में आना, उसको आराधना करना और उसके लोगों के साथ हम भाई बहन लोग परिवार में इस बातों को बांटते हुए और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करना और एक दूसरे से आशीष पाना कितना अच्छा बात है ना। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर का भवन में आना चाहिए। हालेलुया। So today the Christmas Advent has started. So इस Advent के लिए हम लोग नए सीरीज शुरू करने जा रहा है एंड इस साल इस सीरीज के लिए हम लोग ने चुना है क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट इन द सेंस BC। क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट सीम्स टू बी कंट्राडिक्टिंग विद वन अनदर, नो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है ना सुनने से। आप कैसे क्राइस्ट के बारे में बिफोर क्राइस्ट में बात कर सकता है, लेकिन मेरे मतलब ये है कि पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह उस बेथलेहेम में उस चरनी में जन्म लेने से पहले से प्रभु यीशु मसीह का वर्णन पुराने में बहुत कुछ है जो हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं एंड वी ओवरलुक, वी गो पास एंड वी डोंट नो कि व्हाट दिस प्रॉफिट एंड व्हाट दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। इसलिए ये सीजन में वी वुड ट्राई टू सी क्राइस्ट थ्रू द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम से हम लोग यीशु मसीह को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। Of course, we will touch New Testament also, but we will study from the Old Testament. There are many, but from there, we will try to, study few of them, till the Christmas day. Hallelujah! Let's pray. Father, we thank you for your presence. We thank you, Lord, that we are gathered here and we could worship you. We could testify about your goodness, and we want to thank you for all that you have done for us, O Lord. May your name be glorified through all this, O Lord. Father, right now we want to hear from you. We are ready to hear your word. Our hearts are prepared. Our ears are prepared to you, O Lord. Lord, may you touch us. May you minister to us through your Holy Spirit as we hear your word this morning. We command every distraction to go away from this place.
May your word come clearly to us this morning as we hear. Lord, we will be a blessing through your word. In your name we pray. Amen. Amen. So, let us turn to the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15 में हम लोग पढ़ेंगे. इंग्लिश में I will read in NIV. It says, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. ये ठीक है कहता है कि वो तेरा सिर को कुचल देगा, और क्या कहता है, और तू उसी ईरी को दासेगा. नो, ये बात यहाँ में कह रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर वर्स, ठीक है, हम लोग द फर्स्ट टाइम व्हेन वी रीड, हम लोग पहले बार जब पढ़ते हैं तो कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है. बिकॉज हिज नेम क्राइस्ट या तो जीसस का नाम यहाँ में मेंशन नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑफन टाइम वी ओवरलुक. नो, सो दिस पोर्शन दैट वी हैव रेड, जो हमने पढ़ा है, क्या है, दिस इज द first promise given after Adam and Eve ate the forbidden fruit from the Garden of Eden. ठीक है, the first gospel sermon ever preached on the face of the earth. ठीक है, परमेश्वर ने सृष्टि तो किया है, लेकिन मनुष्य का पतन के बाद, जब पाप आने के बाद, परमेश्वर का सुसंदेश या सुसमाचार, सबसे पहले सुसमाचार जो प्रचार किया गया, वर्स है. ये थियोलॉजियन लोग इसको ये कहता है प्रोटो इवेंजलियम करके कहता है. प्रोटो इवेंजलियम मीनिंग है फर्स्ट गॉस्पेल. ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट प्रोफेसी अबाउट मसाया एंड द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द गॉस्पेल ऑफ सल्वेशन. ठीक है, कई बार हम पुराना नियम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह के बारे में तो मेंशन नहीं है. हम लोग कई बार हम लोग पूछते हैं, लेकिन ये जो है, ठीक है, मनुष्य ने परमेश्वर के बात से ज़्यादा उस शैतान के बात को मानकर पाप तो कर लिया है, उसका पतन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वो सुसंदेश जो है, ठीक, अपने जो स्वरूपता में बनाया हुआ मनुष्य को फिर से बचाने का, ठीक है, रास्ता या तो उपाय जो है परमेश्वर यहाँ में बताया जा रहा है. ये पर्टिकुलर प्रॉमिस या तो पर्टिकुलर प्रोफेसी जो है, ठीक है, दिस वुड बी फुलफिल ओनली thousands of years later. ठीक है ना, हजारों के साल बाद उसको पूरा करने के बाद है, जब ये बोल रहा था परमेश्वर शैतान को, यहाँ पे सर्पेंट कहा जाता है. दे मे नॉट रियलाइज ऑल्सो व्हाई ही सेड दैट एंड व्हाट इज ही सेइंग, टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नो, आदम और हवा तक भी मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का योजना था, और परमेश्वर जानता था कि ये मेरा योजना है, आपके लिए है, और आपके बाद पीढ़ी से पीढ़ी जो आएगा, मेरे पास वापस आने का एक उपाय, एक रास्ता, गॉस्पेल, ठीक है ना, वो है ये प्रभु यीशु मसीह. आप परमेश्वर जानते हैं. एंड व्हाई आई से क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, दिस इज बिकॉज in the Old Testament, in many of the places, हर एक बहुत सारे जगह में, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तौर पे, ठीक है, दिखाया जाता है. So we should not be surprised to encounter Christ in the Old Testament. Okay? और पुराना नियम में यीशु मसीह को जब मिलता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, it was not only when he was born in Bethlehem, और वो मेंजर में, वो चरनी में जब जन्म हुआ था यीशु मसीह का शुरुआत हुआ. हम ये लेकर नहीं चल सकते. इट वॉज फ्रॉम इटर्निटी. प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब कहते हैं, व्हेन वी बिलीव द ट्रिनिटी, जो त्रिएक परमेश्वर का डॉक्ट्रिन को हम लोग विश्वास करते हैं, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह शुरू से था, एंड ही इज इटर्नल गॉड. ठीक है ना. ऑफ कोर्स इमानुएल बन के मनुष्य के बीच में हमारे साथ
हमें दिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए मनुष्य के बनकर जो आया था, जो वुमेन सीड, जो द सीड ऑफ द वुमेन जो प्रोफेसाई किया था, वो लाइक फुलफिलमेंट जो था 2000 साल बाद उसी बेथलेहम में एक मनुष्य के रूप में वर्जिन मैरी के द्वारा जन्म लिया। तब वहाँ पे हम जानते हैं कि यस, मनुष्य बन के आया है। लेकिन फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम इटर्निटी, ठीक है, क्राइस्ट वाज देयर, यीशु मसीह जो है वो पहले से था, पहले से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, दैट इज आवर गॉड, दैट्स व्हाई वी से ही इज इटर्नल गॉड। हालेलुया। सो दैट्स व्हाट जॉन वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही सेड नो बिफोर अब्राहम वाज आई एम। ठीक है ना, अब्राहम से पहले मैं था। वो कहने का मतलब है कि ही वाज क्लेमिंग इटर्नल existence with God the Father। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। एंड नाउ इन वर्स 3:15 जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, सीड ऑफ द वुमन, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट सीड ऑफ द वुमन, पर मैं वो स्त्री का वांस या तो वीज के बारे में वो कह रहा है, उसको हम लोग को जाना है, तो वी नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो आप भी मालूम होगा ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से है। तो इट बिगिन विद द ऑब्जर्वेशन दैट दिस वर्स टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। कब हुआ था? तो आदम और ईव हैव जस्ट ईटन द फॉरबिडन फ्रूट। वो मना क्या हुआ, फल को आदम और हवा भी खा चुका है। पाप जो है ऑलरेडी वो ईडन बगीचा में आ चुका है। बिफोर नो सिन एवरीथिंग वाज गुड। ठीक है, वो लोग परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे थे। ठीक है ना, परमेश्वर आया करता था, दे वर फेलोशिप। बट आफ्टर दे हैव ईटन दिस फॉरबिडन फ्रूट, sin has entered this paradise. Or so the first thing that they tried to do was they tried to hide from God. परमेश्वर से वो छुपने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज़ जो they tried to do was to make excuse। ठीक है, वो बहाना बनाने के लिए कि हमने नहीं किया है। ठीक है ना, मैंने नहीं किया है। So there was no one is willing to stand up and say no, it was me, I did it, I'm sorry, मेरा गलती है। बोलने वाला वहाँ में नहीं है, लेकिन ब्लेम गेम खेलने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे ऐसे समय में था। एंड सडनली जो ईडन का बगीचा इतना सुंदर, जो पैराडाइज जो परमेश्वर ने बनाया था, वो क्या हुआ था? द ब्यूटी हैज़ गॉन। जो सुंदरता जो है वो चला गया है। एंड इट हैज़ बिन रूइंड बाय द एंट्रेंस ऑफ द सिन। पाप अभी आ गया है, तो वो सुंदरता जो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, वो सब चीज़ अभी बिगड़ गया है, खराब हो गया है। एंड अंडर द ट्री वाज सिटिंग हु? शैतान जो है आराम से मज़ा लेकर बैठा हुआ है। एंड सीइंग एंजॉइंग व्हाट इज हैपनिंग। जो सीन को देख वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि what he was planning he could accomplish and उसी समय में कौन आया था? परमेश्वर आया था। God immediately begin to pass। हम जानते हैं पूरा पड़ेगा, तो वहाँ में आकर परमेश्वर अपना जजमेंट भी सुना देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम जानते हैं कि even though this is the first gospel promised by God, शैतान के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं था। Even though it is a good news to us, the descendant from Adam and Eve, this is not a good news for Satan, because शैतान के लिए परमेश्वर ने न्याय या तो उसका जजमेंट जो है सुना चुका था। And let us see from this verse what prediction, क्या prediction देखने मिलता है when we talk about the seed of the woman। सबसे पहले जो है endless कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कहता है कि and I would put enmity between you and the woman and between your offspring and her। The key word here is enmity। ठीक है ना, दूसरा वाला ट्रांसलेशन में I would put hostility भी बोलता है, और I would put hatred भी बोलता है, और there will be war भी बोलता है। ठीक है,
ये जो पर्टिकुलर वर्ड जो है एनमिटी जो है. सो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे परमेश्वर वो शैतान को क्या कह रहा है, आप और ये स्त्री का वाद का बीच में there will be war, there will be enmity, there will be endless conflict. ठीक है. So first Eve and Satan is not going to get along. अगर शैतान ये सोच कर रहा है कि हम ईव को जीत लेगा तो ईव को हम अपना बैक पॉकेट में रख सकता है, जब चाहे हम कर सकता है. ही इज रॉन्ग. ठीक है. वो सोच रहा था कि एक बार जीतने के बाद हम अपने बना लेंगे, लेकिन वो गलत है. परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि आप और उस स्त्री का वंश के बीच में मैं शत्रुता और बैर हम रख दिया है. दैट मीन्स वॉर, एंडलेस वॉर. दैट्स व्हाई we talk about spiritual war. When we talk about spiritual war, where did it begin? हम लोग हमेशा यहाँ वापस आता है. ठीक है ना. हम लोग का स्पिरिचुअल वॉर जो है कहाँ शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होता है और अभी तक हम लोग उसी लड़ाई में हैं. वी आर इन द बैटलफील्ड बोलता है ना. सो ऑफस्प्रिंग जो है, देखिए हिब्रू वर्ड में देखेगा तो इट इज सीड, बीज के लिए बोला जाता है, रिफरिंग टू द generation yet unborn that would trace their heritage back to Eve. So the seed of offspring refer to men and women in every generation who believe God, who work with God in obedience to His command. Say godly line like एबेल है, इनक है, नोआ है, नू है, अब्राहम है, इसाक है, याकूब है, बहुत सारा है ना. यूसुफ है, मूसा है, यहोशुआ है, रूत है, दाऊद है. ठीक है. एस्तर है. बाइबल में लिखेगा तो गॉडली लाइन जो हम देखते हैं. एंड इवेंचुअली इट कम्स टू द पर्सन जीसस क्राइस्ट. ठीक है ना. वो बीज जो है, सीड जो है, ऑफ कोर्स इट पॉइंटेड टू क्राइस्ट, but it is also the godly generation that is going to come down. So this seed of woman talks about that godly line, people who are believing Christ, people who work with the Lord, including us. Okay. But at the same time there are Satan's seed. शैतान का वंश, शैतान का बीज भी है. What do I mean that? Throughout history, in every generation, in every country, in every cities, in every village, in every tribes, clans, in every family, Satan has had his people. ठीक है ना. Example, it start with Cain who killed Abel. ठीक है. केन और हबेल का कहानी जानता है कि केन ने किसको मारा था, हबेल को मारा था. The first murder in the Bible, or the wicked generation of Noah. नूह का समय में जो परमेश्वर को मानता नहीं था, जो परमेश्वर ने निर्णय करके जो नाश किया था, वो जनरेशन आप देख सकता है. एंड यू कैन टॉक अबाउट फेरो हु अपोज मोसेस, फेरो हु अपोज गॉड, एंड द कैनानाइट हु मॉक जोशुआ व्हेन दे केम. एंड ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट लाइक Goliath who mocked David. Not only David, the God of David. No, there were people who put Daniel in the lion's den, and those who hate the prophets and who kill, no, who murder the prophet of God. ठीक है ना. ऐसा हम सब जानते हैं बाइबल में. And when it comes to the days of Jesus, no, when his birth was going to happen, उसका जन्म का जब समय आया था, who was there? There was Herod who wants to kill him. And when he grew up, there were Pharisees. No, Pharisees लोग थे, no, who plot against, no, to kill him. And even Satan infiltrated the inner circle of his ministry and used Judas. यहूदा इसकरियत को इस्तेमाल करके यीशु मसीह को, ठीक है, बिट्रे करने के लिए इस्तेमाल किया था. And यहाँ तक कि when Pilate offered to release Christ, क्या हुआ था? They plead for Barabbas instead of Christ. You know, जो डाकू जो जेल में था, उसके लिए मांगा, उसके जीवन मांगा, उसको रिलीज करने के लिए बोला instead of Jesus Christ. So from here you can see, since the fall,
Now from this time on, in the human history, there are two kinds of human beings. The one humanity says there is no God. अपने सोच का अनुसार, अपने तरीका का अनुसार अपना परमेश्वर वो बना लेते हैं और they tries to come to God in their own way. ठीक है ना, जो जैसे चाहता है वैसे अपना, ठीक है, एक तो नहीं है, एक तो नहीं है भी, तो हम अपना तरीका से. और दूसरा ग्रुप जो है, they believe the existence of God, that God, there is true God where we can come to, and there is true God where we can worship. ठीक है, ये दो तरीका का लोगों को देखते हैं. The seed of the woman, the seed of the serpent, and they have opposed to each other continuously for the century. That's why I say we are in the war. आज भी आप प्रभु का है, आज भी आप परमेश्वर का है, तो आपका विरोध में कोई है जो आपको 24/7 लड़ेगा. ठीक है, इस बात को आपको जानना है. You may not see with your physical, you may not understand with your physical, thinking, but if you look through the spiritual realms, ठीक है ना, there will be another group of people who is opposing you. ठीक है, आपका विश्वास का चल में, आपका खिलाफ में हमेशा आपको नुकसान करना, आपको लड़ना और आपको खींचना, आपको नीचे गिराना, एक होगा जो आपका खिलाफ में, आपका न विरोध में लड़ने वाला. ठीक है ना. सो यहाँ पे बाइबल कहता है, when our text say he will strike his heel, तू उसकी ईरी को दासेगा बोल रहा है ना. सो शैतान जो है, क्योंकि अभी हमारा ओपोजिशन में है, क्योंकि हमारा खिलाफ में लड़ रहा है, तो उसका तीर है, तो हर प्रकार का तीर है हमारा तरफ जो को छोड़ेगा, हमारा तरफ जो मारेगा. That's what I say sometimes in our faith work we may be wounded with some discouragement, some criticism, some anger, some bitterness, or maybe the dreams that you have but you could not accomplish, or maybe the goal that you have in spite of your hard work, you are not being able to accomplish. Sometimes you may, those things that comes and against you may wound you. लेकिन यहाँ पे जो चोट के बारे में बोल रहा है, वो बड़ा वाला चोट, जो सिर वाला चोट नहीं, लेकिन आपका क्या ईरी हील में आके आपको, ठीक है, दासेगा बोल रहा है ना, दासेगा बोल रहा है. You are not going to die. So the text remind us about our Christian life. हमारा मसीह का जीवन जो है is not going to be a bed of roses. ठीक है, कई बार कई लोग बोलता है कि when you come to Christ everything is going to be beautiful, everything is going to be okay, everything is going to be smooth. ठीक है, it is a bed of roses. No, that is wrong. नहीं, मसीह का जीवन जो है, we have an enemy who will come, try to inflict us, trouble us, pull us down, discourage us. ठीक है, that's what the Bible says. And another meaning is when Christ died on the cross, Satan struck his heel. ठीक है ना, यीशु मसीह जब क्रूस में टांगा था और क्रूस का जो सफर को ले रहे थे, क्रूस में उसको क्रूसित किया गया था, तो क्या है, शैतान उसके ईरी को दासा. ठीक है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहा है उत्पत्ति 3:15 में पढ़ रहा है ना, he will strike his heel, जो बोल रहा है वो हम देखते हैं. We know that he was hung on the cross, he was nailed to the cross, from his crown of his head to his hand and to his feet, he was nailed to the cross. ठीक है ना, he was nailed to the cross. But that doesn't finish. फ्राइडे को जब क्रूस में टंगा हुआ था, क्रूस से उसका बॉडी को लेकर आ रहा था, तो it seems or it appears that Satan had won the battle. जब उसका बॉडी को लेकर आ रहा था, तो देखने में तो लग रहा है कि वो हार गया. ठीक है, अभी तो मर गया, अभी तो कब्र में रखा गया. शैतान खुश हो रहा है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन that was not the reality. ठीक है, all he did was just strike his heel. ठीक है, वो क्या को कर रहा है, उसके ईरी को दसा रहा है. ठीक है ना, दसा रहा है. और हम जानते हैं कि what
Jesus is going to do to Satan is not comparable. Because even though Friday it looks bad, on Sunday we know that this person whom Satan strike here, comes back. The true victor walk out of the grave alive from the dead. And this day we celebrate his resurrection. And this day we believe because he has been resurrected from Christ. अगर आज प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर, ठीक है, वो जय नहीं पाए, उस मृत्यु से जय नहीं पाए, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। आज हम एक साथ मिलकर उसके बारे में सीख रहा है। आज हम उसके बारे में सीखने के बाद उस किसी और को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर आज हम विश्वास करके संडे को साथ आते हैं, सेल ग्रुप ज्वाइन करके बाइबल स्टडी करते हैं, तो क्यों है? बिकॉज आवर गॉड इज अलाइव। यीशु मसीह वो जिंदा हुआ। सो हियर इफ यू सी इट इज बिटवीन heel and head and it is striking versus crushing, ठीक है ना। एक तो इरी में है, एक तो सिर में है, एक तो क्या है, दसना है, और एक तो कुचलना है। So you can just imagine who will die, ठीक है ना, whether in the heel or whether in the crushing of a head. So when you think about this crushing of his head, ठीक है, ये एनिमी के ऊपर जय तो पा लिया है बोल रहा है, तो आपको ये प्रश्न आ जाता है कि बट हाउ कम इफ सेटन हैज बीन क्रश, व्हाई डज ही स्टिल सीम टू बी डूइंग सो वेल एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी भी क्यों अपना इतना इफेक्टिव हो रहा है, क्यों अपना काम ऐसे अभी तक कर रहा है। तो आंसर, उसका उत्तर जो है, ठीक है, एट द क्रॉस सेटन वाज जज एंड हिज सेंटेंस प्रोनाउंस्ड, बट हाउएवर ही इज नाउ free to roam around the earth till awaiting for his final execution. ये बाइबल में साफ है। At the end we know that the ultimate the victory will come and he's going to be destroyed, ठीक है, and there for eternity we are going to live together with Christ our Messiah, ठीक है, King of Kings for eternity. So when we apply to our Christian life, हमारा मसीह का जीवन में जब अप्लाई करता है, कैसे हम लोग लागू करता है, हाउ डिड इट अप्लाई टू अस, द क्रिश्चियन लाइफ इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ स्ट्रगल, ठीक है। सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये संघर्ष करने का है, संघर्ष करने, मसीह का जीवन जो है संघर्ष करने का है। इसीलिए पौलुस जब कहता है, तो पौलुस यूज द इमेज ऑफ रनर्स, बॉक्सर, रेसलर, ठीक है, एथलीट को लेकर वो यूज करता है ना पौलुस जो है, एंड इवन सोल्जर्स, सिपाही, ठीक है ना, के बारे में बात करता है। दैट टेल्स अस दैट क्रिश्चियन लाइफ इजंट गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड वर्क, इट डिमांड्स फुल कमिटमेंट एंड इट डिमांड्स फुल एंगेजमेंट ऑफ आवर सोल, ठीक है। मसीह का जीवन आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान से है, आप रिलैक्स कर जी सकता है। आई एम टेलिंग यू, you got to fight your fight. That's why the book of Timothy chapter 6 verse 12 says, now fight the good fight of faith. Yeah, it says fight the good fight for the true faith, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, हमारा ट्रू फेथ, सच्चा विश्वास जो हमने ग्रहण कर लिया है, जो हमने चुन लिया है, उसी में लगे रहने के लिए हम लोग को क्या करना है, लड़ना है, बोल रहा है, फाइट, ठीक है ना, आवर फाइट, एंड होल्ड टाइटली टू द इटर्नल लाइफ। ये टेम्पररी चीज़ों में जो आज रहेगा कल खत्म हो जाएगा, उसमें आप लगे मत रहो, लेकिन where you have to hold on to the eternal things, to the eternal type. Hold tightly, don't open your grip. जो आपने पकड़ा है उसको टाइट पकड़ के रखो, जब तक आप उसको मिलाना है, जब तक आपका मंजिल ना पहुंचे, उसी को पकड़ते हुए फाइट योर बैटल दैट कम्स अगेंस्ट यू, ठीक है ना। मसीह का जीवन जो है कोई लोग बोलते हैं बहुत आसान से है, बहुत आसान से है,
जब आप मसीह में आएगा तो बीमार नहीं होगा, जब आप मसीह में आएगा तो ना आपके पास पैसा आएगा, जब आप मसीह में आएगा तो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट नो बिब्लिकल। बाइबल साफ साफ कहते हैं इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 verse 13 to 14, if you read there, it is very clear. In NLT, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose the way. 14 में कहता है, but the gateway to life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it. So मसीह का जीवन जीने के लिए जो बुलाया गया यहाँ पे बता रहा है कि वो सकरा है, बोलेगा ना, सकरा है और मुश्किल है बोल रहा है। NLT में बोलता है इट्स डिफिकल्ट बोल रहा है, ठीक है, इट्स डिफिकल्ट। सो इसीलिए सब कोई जाना नहीं मांगता है बोल रहा है, हाईवे जैसे नहीं है। सो दैट्स वाई नो जॉन 15:18-19 जैसे हमने देखा था, इवन जीसस सेज इफ द वर्ल्ड हेट यू कीप इन माइंड दैट ही हेट मी फर्स्ट, ठीक है। इस दुनिया में हम जब जी रहा है, स्त्री का बीज का लाइन में है हम लोग, ठीक है, उसी को लेकर हम लोग जी रहा है, तो उसी का विरोध में कौन होगा? शैतान का वंश भी होगा, जो बीज जो है उसका खिलाफ में वो लोग भी आपके खिलाफ में होगा। दे विल हेट यू, दे विल टॉक बैड अबाउट यू, दे विल से क्या कर रहा है आप, नो, हर संडे चर्च जाता है, आराम से घर बैठ सकता था, व्हाई यू आर रीडिंग दिस बाइबल, व्हाई यू टॉक अबाउट दिस गॉड, ठीक है। बहुत से लोग होगा आपका विश्वास का खिलाफ विरोध में आपका डिस्करेज करने के लिए। देन जीसस सेज डोंट बी डिस्करेज, नो दैट ही हेट्स मी फर्स्ट। व्हेन दे हेट यू, ही हेट्स मी फर्स्ट। यू जस्ट रिमेंबर दैट। नो, व्हेनेवर यू एनकाउंटर थिंग्स रिगार्डिंग योर फेथ, आपका विश्वास में कोई चैलेंज, कोई चुनौती देखते हैं और आप मुश्किल हो रहा है, देन यू ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट इज टू क्राइस्ट दे आर डूइंग दिस। नो, मुझको नहीं है लेकिन दे आर डूइंग इट टू क्राइस्ट। सो इफ द वर्ल्ड हेट यू एंड मी, इज टू हुम? टू क्राइस्ट। हालेलुया। सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इच्छा जीने के लिए अगर इफ ही सफर, you and me, child of God, हम लोग जो यीशु ने बुलाया है, जो यीशु में विश्वास किया है, जो यीशु ने हमें उसी सकरा में मार्ग में चलने के लिए बुलाया, हम लोग को भी इस संसार में जो भी संघर्ष आता है, हम संघर्ष मतलब जो परमेश्वर के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, उसी के लिए हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कई बार हम लोग जब ये सब सामना करते हैं तो वी इजीली कंप्लेन, वी इजीली गिव अप, वी इजीली से हमसे नहीं होगा ना, मुझसे नहीं होगा, रहने दो होता है। लेकिन द बुक ऑफ रोमन्स 8:18 सेज ना, येट व्हाट वी सफर नाउ इज नथिंग कंपेयर टू द ग्लोरी ही विल रिवील टू अस लेटर। यही है, हियर इन दिस वर्ल्ड देयर विल बी ट्रिबुलेशन, here in this world there will be persecution, here in this world the enemy will come and try to strike us, but be encouraged because the suffering, the present suffering is nothing compared to the glory that we are going to receive. That's why मसीह का जीवन में हम लोग को उस विश्वास का चलने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। ओके, इसलिए we should not be discouraged and we should not try to run away, escape from the battle that we are fighting every day. If you try to escape from the battle in life, you will get another battle, ठीक है ना। इसलिए you better fight your battle, ठीक है ना। इसलिए Bible says in the book of Ephesians chapter 6, verse 10 onward, if you read there, it talks about our battle. Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world,
against mighty powers in the dark world and against evil spirit in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then, after the battle, you will still be standing firm. इसीलिए हमारा मसीह का चल चलन, हमारा मसीह जीवन में लड़ने के लिए हमें इंकरेज करता है. लड़ना कैसे लड़ना? नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड. ठीक है, हमारे एनिमी जो है फ्लेश एंड ब्लड नहीं है. दो इट अपियर्स फ्लेश एंड ब्लड, आवर फाइट इज नॉट फ्लेश एंड ब्लड. आवर फाइट इज स्पिरिचुअल, अनसीन वर्ड, अनसीन वर्ड. ठीक है, जो वर्ड जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में शुरू हुआ था, अभी तक आप लड़ना है. वो लड़ाई क्या है? जीत चुका है. किसने? द सीड, द अल्टीमेट सीड ऑफ द वुमन, यीशु मसीह का जन्म के द्वारा क्रूस में. ठीक है, आपके लिए मेरे लिए वो जीत चुका है. लेकिन हाउ डू इफ आई स्टैंडिंग ऑन दैट ग्राउंड. इसीलिए इफिशियंस 6:10 से पढ़ेगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्टैंड स्टैंड स्टैंड. एंडिंग में भी नो यू रिमेन स्टैंडिंग फर्म बोल रहा है. वो स्टैंडिंग फर्म, स्टैंडिंग जो क्या है? बिकॉज यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री. यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया, मेरे लिए कर दिया है. उसी में आप खड़ा होकर आपका शत्रु को आप लड़ रहा है. ठीक है, आपका बीमारी को लड़ रहा है, आपका समस्या को लड़ रहा है. ठीक है, और वो क्या है? लहू और मांस में नहीं है. हो सकता है आपका एनिमी वो फिजिकल में हो, आप उसका चेहरा देखता है तो ठीक है, आपका मुंह फिरने मन करते हैं. लेकिन ये कहते हैं इट इज अनसीन वर्ल्ड इन स्पिरिचुअल रियम्स. ठीक है ना? सो इट इज नॉट दैट पर्सन बट बिहाइंड दैट पर्सन द स्पिरिट दैट इज डूइंग. ठीक है, उसी को हम लोग लड़ता है, उसी को हम लोग संघर्ष करते हैं, उसी का ऊपर में हम लोग वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ विक्ट्री में खड़ा होकर हम लोग लड़ता है. ओके, दैट्स व्हाई मसीह जीवन जो है, इफ आई टेल यू, no, you will not like to listen. It is not easy. It is difficult one, but we are to work. But the end glory जो है is going to be wonderful. जो महिमा अंत में हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, कोई भी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो महिमा जो आपको मिलेगा. ठीक है, इसीलिए वो पौलुस हम लोग को इनकरेज कर रहा है. उसी को सोच कर, जो हमारे लिए जो दौड़ चुका है, जो यीशु ने हमारे लिए कर, उसमें देखकर, ठीक है, हम भी जब दौड़ेगा तो we will be able to stand firm. Now after the battle is finished, you will still be standing. इसीलिए बोल रहा है कि we have to fight the battles. ठीक है, and in the end, जो फाइनल में हम जो बोलने चाह रहा है कि जो seed of the woman, since it is a person, our salvation, the plan of salvation that God has planned way before is in the person. ठीक है ना? So it is wrapped in this person, Jesus Christ. That's why we celebrate Christmas. ठीक है ना? ये जो क्रिसमस के लिए हम लोग तैयार कर रहा है, क्रिसमस जो 25 को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार कर रहा है. If we don't know this person that has been wrapped and brought to us, our Christmas will be meaningless. ठीक है ना? इसीलिए ये एडवेंट में हम लोग को अपना आप को तैयार करना है. वो जो सीड सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर ने सुना दिया, वो आज आया, उसका द्वारा मैं वो उद्धार पाया है, मेरा पापों को क्षमा पाया है. और मेरा पापों को क्षमा और मेरा उद्धार कहीं और नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र में रैप करके आया गया है. और उसने मेरे लिए मारा है, उसने मेरे लिए गड़ा गया, उसने मेरे लिए जी उठाया. इसका कारण आज हम उद्धार पाया. और मैं भी उसको फिर से मिलेगा, वो वापस आएगा लेने के लिए. और तब तक मैं इसी जीवन में उसको देखकर, मेरा मंजिल जो है वो है, उसको देखकर मैं संघर्ष कर रहा है, मैं चल रहा है मेरे विश्वास में. चाहे मेरा दाएं से, मेरा बाएं से, मेरा पीछे से वो शत्रु आए, ठीक है, द सीड ऑफ सेटन, ठीक है, कम्स, आई एम गोइंग टू स्टैंड फर्म
till the end of the battles, ठीक है ना, हम खड़ा होंगे and I'm going to achieve, ठीक है, the crown of glory that he is going to give, the glory that you can never imagine, the glory that you can never explain, ठीक है, that God is going to give you again, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब क्रिसमस के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो हम लोग को उसी को फिर से याद करना है, ठीक है ना। क्रिसमस हम लोग, ठीक है, खाते हैं, ठीक है, कपड़ा पहनता है, नया कपड़ा पहनता है, ठीक है, केक बनाता है, लेकिन वहाँ से ख़त्म नहीं होना है। As we wait, let us wait with this message। हम लोग इसी संदेह के साथ हम लोग वेट करते हैं कि ये क्रिसमस में सच में परमेश्वर ने अपना मुंह ना फिरा, परमेश्वर ने भले मनुष्य का पतन हुआ लेकिन अपना अनुग्रह तुरंत वहाँ में दिखा दिया कि आएगा, स्त्री का वो वंश आएगा, तो उसी के द्वारा हमारा पाप का मुक्ति होगा, ठीक है। इसका द्वारा हम क्रिसमस मनाते हैं। तो आज ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसा है, ये एडवेंट क्रिसमस में, ठीक है ना, थ्रू आउट दिस क्रिसमस डे till the Christmas day we are going to study Christ in the Old Testament, ठीक है। आज जो हमने देखा था उत्पत्ति 3:15 में देखा है। उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह कौन है? The seed of the woman, and enmity जो है वो परमेश्वर ने डाल दिया था, इसीलिए आज हम लोग उसके साथ लड़ रहे हैं। Okay, so if God has promised that, and if God has promised on the day of Christmas in Bethlehem, आज आपका हमारा चुनाव है कि लेना है कि नहीं लेना है। Okay, it is up to you and me to receive, ठीक है ना। If you know the truth and if you want to receive, you have to receive. If you don't know and if you say I'm still on the way, you think about yourself, where are you in your spiritual life? आपका आत्मिक जीवन में आप कहाँ हो, कहाँ में आप घूम रहा है, कहाँ में आप खो रहा है। And if you think that yes, I haven't received it, I want to receive, you've got to receive, because there is no other ways to go back to God, ठीक है। This is the solution, this is the solution of the fall, ठीक है। पतन का सलूशन यही है। अगर यहाँ पे अगर नहीं आएगा तो हम फिर से वापस नहीं आ पाएंगे। So this Christmas, let us look to ourselves and also let us be a blessing to others. If there are people who have not received this Christ, we will be a blessing. At least this Christmas I will tell somebody about why he came. Okay, let's pray. हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब को आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को लेकर हमारा हृदय में सेवा किया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज से हम जब शुरू किए आप आने के बारे में, जो पुराना नियम में आप अपना आप को कैसे प्रकाश किया, प्रभु इन बातों में जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रभु हमें सहायता करें, ताकि हम एक क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेट और सेलिब्रेशन करके ख़त्म ना हो, लेकिन हम ये क्रिसमस में एक मीनिंगफुल क्रिसमस लोगों के लिए एक आशीष बन पाए। प्रभु जी, सच में प्रभु, ये प्रभु दिन को जब हम इंतज़ार करते हैं तो हमारा आत्मिक तौर में भी हम तैयार होने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद करते हैं कलीसिया का हर एक प्रभु प्रोग्राम जो भी प्लान किया है, जो भी योजना है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई हो पाए। हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।